آج ہم ایک ایسی چیز کی تلاش میں ہیں جس کی خواہش شاید ہر انسان کو ہوتی ہے، ایک لمبی، صحت مند اور خوشگوار زندگی۔ بالکل۔ اور اس تلاش میں ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پاس ہے ہیکٹر گارسیا اور فرانسسک میرالس کی کتاب ایکیگائے، ایک لمبی اور خوشگوار زندگی کا جاپانی راز۔ جی، یہ کتاب ہمیں سیدھا لے جاتی ہے جاپان کے ایک چھوٹے سے جزیرے اوکیناوا، ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کے سب سے زیادہ طویل عمر لوگ بستے ہیں۔ ہاں، یہ بات بہت حیران کن ہے۔ تو آج ہم اس کتاب کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان لوگوں کا راز کیا ہے۔ کیا یہ صرف ان کی خوراک ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا فلسفہ چھپا ہے؟ چلیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل، اور یہ فلسفہ ایک لفظ میں سمویا ہوا ہے، ایکیگائی۔ ایکیگائی۔ جی، ایکیگائی۔ اس کا کوئی سیدھا سادہ ترجمہ تو نہیں ہے، لیکن اسے صبح اٹھنے کی وجہ یا ہمیشہ مصروف رہنے کی خوشی کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کی زندگی کو معنی دیتی ہے، یعنی زندگی کا مقصد۔ ہاں، ایک طرح سے۔ مصنفین جب اوکیناوا گئے، جسے لافانی لوگوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ہر 1,00,000 میں تقریباً 25 افراد 100 سال سے زیادہ عمر کے ہیں۔ 25؟ یہ تو عالمی اوسط سے بہت زیادہ ہے۔ کہیں زیادہ۔ اور انہیں جلد ہی احساس ہوا کہ راز صرف زیتون کے تیل یا سبز چائے میں نہیں، بلکہ ان لوگوں کی جینے کے انداز میں ہے۔ ان کا ایکیگائی ان کی زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتا ہے۔ کتاب میں جو سب سے پہلی حیران کن بات مجھے لگی وہ یہ تھی کہ جاپانی زبان میں ریٹائرمنٹ کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ مطلب ایسا کوئی لفظ جس کا مطلب ہو کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا۔ یہ تصور ہی ہمارے لیے کتنا عجیب ہے نا؟ ہم تو پوری زندگی ریٹائرمنٹ کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں۔ بالکل، جبکہ اوکیناوا کے لوگ اپنا پسندیدہ کام تب تک کرتے رہتے ہیں جب تک ان کا جسم اجازت دے۔ اور یہ دنیا کے ان 5 علاقوں میں سے ایک ہے جنہیں بلو زونز کہتے ہیں۔ جی، جہاں لوگ غیر معمولی طور پر لمبی عمر پاتے ہیں، اور ان سب جگہوں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، لیکن اوکیناوا کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور کیا چیز انہیں منفرد بناتی ہے؟ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ایک اعتدال نظر آتا ہے، خاص طور پر کھانے میں۔ ان کا ایک بنیادی اصول ہے جسے وہ کہتے ہیں ہارا ہاچیبو۔ ہارا ہاچیبو؟ جی، یعنی اپنا پیٹ 80% بھرو۔ ہاں، یہ ایک قدیم کہاوت ہے جسے وہ کھانا کھانے سے پہلے دہراتے ہیں تاکہ خود کو یاد دلا سکیں۔ اچھا۔ وہ کبھی بھی بالکل پیٹ بھر کر، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا ٹھوس کر، ویسے نہیں کھاتے۔ اس کا سائنسی فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کم کھاتے ہیں تو آپ کا نظام ہاضمہ آرام سے کام کرتا ہے، اور جسم میں وہ کیا کہتے ہیں سیلولر آکسیڈیشن کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ یہی آکسیڈیشن دراصل عمر بڑھنے کا عمل ہے۔ یہ 80% والا اصول سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کوئی یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا پیٹ 80% بھر گیا ہے؟ یہ کوئی گاڑی کا فیول ٹینک تو ہے نہیں جس میں میٹر لگا ہو؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب کے مطابق یہ کوئی ریاضی کا فارمولا نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ دراصل اپنے جسم کو سننے کی ایک مشق ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا پیٹ تقریباً بھر گیا ہے لیکن آپ تھوڑا اور کھا سکتے ہیں، بس وہیں رک جائیں۔ اوہ، تو یہ ایک احساس ہے۔ بالکل۔ شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ اپنے جسم کے اشاروں کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ ویسے بھی اوکیناوا کے لوگ اوسطاً صرف 1800 سے 1900 کیلوریز لیتے ہیں۔ اور مغربی ممالک میں یہ تعداد تو 3000 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ جی، ان کی خوراک میں ٹوفو، شکرکندی، مچھلی اور بے شمار قسم کی سبزیاں شامل ہیں۔ وہ ایک دن میں 18 مختلف قسم کی غذائیں کھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت تھوڑی مقدار میں۔ تو وہ اپنے جسم کو تو بہت اچھی طرح سے خوراک دیتے ہیں، لیکن روح کی خوراک کا کیا؟ کتاب میں ایک بہت ہی خوبصورت تصور کا ذکر ہے جسے موآئی کہتے ہیں۔ ہاں، موآئی۔ یہ صرف دوستوں کا ایک گروپ نہیں لگتا، بلکہ اس سے کچھ زیادہ گہرا۔ جی، موآئی ان کی لمبی عمر کا شاید سب سے بڑا راز ہے۔ یہ مشترکہ مفادات رکھنے والے لوگوں کا ایک گروہ ہے جو زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا عہد کرتا ہے۔ زندگی بھر کا ساتھ؟ جی، یہ صرف جذباتی سہارا نہیں بلکہ ایک سماجی اور مالیاتی حفاظتی جال ہے۔
हर महीने मुआई के अराकीन एक तयशुदा रकम जमा करते हैं। अच्छा। इस रकम से वो मिलके पार्टियां करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, या अगर किसी पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए जैसे बीमारी या माली तंगी, तो ये रकम उसकी मदद के लिए इस्तेमाल होती है। वाह। ये एहसास कि आप अकेले नहीं हैं, कि आपके पीछे एक पूरा कबीला खड़ा है, ये ज़हनी सुकून देता है जो किसी भी दवा से ज्यादा ताकतवर है। आजकल के दौर में जहां लोग बड़े शहरों में बिल्कुल तन्हा रहते हैं, जी ये मुआई का तस्वुर तो एक नेमत जैसा लगता है। बिल्कुल। ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ यकीनन जिंदगी के सबसे बड़े मसले यानी तनाव या स्ट्रेस को कम करता होगा। जाहिर है। और किताब में स्ट्रेस के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि मुतनाज़िया बात लिखी है। हाँ, ये बहुत अहमियत का है। हम सब जानते हैं कि मुसलसल और शदीद तनाव एक खामोश कातिल है। ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करता है, याददाश्त पर असरअंदाज होता है और वक्त से पहले बुढ़ापे का सबब बनता है। बिल्कुल। किताब में बताया गया है कि हमारा दिमाग आज भी कदीम दौर की तरह काम करता है। इसके लिए एक जरूरी ईमेल की नोटिफिकेशन और एक जंगली जानवर का खतरा तकरीबन एक बराबर है। जी बिल्कुल। दोनों सूरतों में जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स खारिज होते हैं। एक मिनट, तो किताब ये कह रही है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा हो सकता है। ये तो हर उस मशवरे के खिलाफ है जो हमें डॉक्टरों से मिलता है कि स्ट्रेस से बचो। इसके पीछे वजह क्या है? यही तो दिलचस्प बात है। किताब ये वाजे करती है कि दायमी बेकाबू तनाव वाकई जहर है। सही। लेकिन कम सतह का काबिल इंतजाम तनाव या चैलेंज दरअसल फायदेमंद हो सकता है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि जो लोग अपनी जिंदगी में चैलेंजेस का सामना करते हैं, अपने काम में मसरूफ रहते हैं, वो उन लोगों से ज्यादा लंबी उम्र पाते हैं जो एक बिल्कुल पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा। जी, ये हल्का सा तनाव हमारे दिमाग और जिस्म को चौकस और मजबूत रखता है। ये बिल्कुल एक वैक्सीन की तरह है जो थोड़ी मिकदार में बीमारी का सामना करवा के जिस्म को मुस्तकबिल के लिए तैयार करती है। वाह, तो मकसद चैलेंज से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करने के लिए खुद को मुतहर्रिक रखना है, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। बिल्कुल। और जहां तक जिस्मानी हरकत की बात है, ओकिनावा के लोगों का तरीका भी मुनफरिद है। वो जिम जाके घंटों वर्जिश नहीं करते। ठीक कहा ना? बिल्कुल नहीं। उनकी जिंदगी में वर्जिश अलग से कोई काम नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी खुद ही एक वर्जिश है। मतलब वो सारा दिन चलते फिरते हैं, अपने बागीचों में झुककर काम करते हैं, दोस्तों से मिलने पैदल जाते हैं। फर्श पर बैठने और उठने से उनके पट्टे और जोड़ मजबूत रहते हैं। अच्छा। इसके बरक्स हमारा जदीद तर्ज जिंदगी हमें घंटों कुर्सी से बांधे रखता है, जिसे अब नया सिगरेट नोशी कहा जा रहा है। नया सिगरेट नोशी, ये तो बहुत संगीन बात है। क्योंकि उसके नुकसानात भी इतने ही संगीन हैं। ये जो ओकिनावा के लोग सारा दिन अपने बागीचों में काम करते हैं, इससे मुझे ख्याल आया कि वो अपने काम में किस कदर मग्न और गुम हो जाते होंगे। किताब में इस कैफियत के लिए एक बहुत ही खूबसूरत नफ्सियाती इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, फ्लो। जी, फ्लो। ये तसव्वुर माहिर नफ्सियात मिहाई चिक्सिंटमिहाई ने पेश किया था। और ये है क्या? ये वो ज़हनी कैफियत है जब आप किसी काम में इस कदर डूब जाते हैं कि आपको वक्त, भूख, प्यास, यहाँ तक कि अपनी जात का भी एहसास नहीं रहता। बस आप होते हैं और आपका काम होता है। जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करते हुए। बिल्कुल। ये खुशी और इत्मीनान की सबसे आला शक्लों में से एक है। इस हालत को पाने के लिए कुछ शराइत हैं। एक वाज़े मकसद हो, काम ना बहुत आसान हो ना बहुत मुश्किल, और सबसे अहम, आपका माहौल हर किस्म की खलफशार से पाक हो। ये आखिरी शर्त आज के दौर में तकरीबन नामुमकिन लगती है। मैं खुद उसका मुजरिम हूँ। एक ही वक्त में ईमेल्स, फोन कॉल्स, मीटिंग की तैयारी। मल्टीटास्किंग। हाँ, मल्टीटास्किंग। हम समझते हैं कि इससे हम बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन किताब तो कुछ और ही कहती है। वो कहती है कि इससे मेरा IQ 10 पॉइंट्स तक गिर जाता है। ये तो डराने वाली बात है। ये वाकई चौंका देने वाली हकीकत है। किताब के मुताबिक जिसे हम मल्टीटास्किंग समझते हैं, वो दरअसल टास्क स्विचिंग है। टास्क स्विचिंग? जी, हमारा दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक ही काम पर पूरी तवज्जो दे सकता है। जब हम तेजी से एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं, तो हर बार हमारी ज़हनी तवानाई का एक बड़ा हिस्सा ज़ाया होता है और गलतियों का इम्कान बढ़ जाता है। तो पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है। यानी माहिर कारीगरों की मिसाल दी गई है। किताब में जीरो नामी एक सुशी मास्टर का जिक्र है जो 90 साल की उम्र में भी रोज सुशी बनाते हैं।
90 साल की उम्र में? जी, और कहते हैं कि वो अब भी अपने फन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने काम में मुकम्मल तौर पर फ्लो की हालत में होते हैं। ठीक है, लेकिन हम में से हर कोई तो दुनिया का बेहतरीन सुशी शेफ नहीं बन सकता। क्या एक आम इंसान जो रोजमर्रा के काम करता है, वो भी इस फ्लो की कैफियत को पा सकता है? यकीनन, और इसे किताब में माइक्रो फ्लो कहा गया है। माइक्रो फ्लो? आप रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी फ्लो तलाश कर सकते हैं, जैसे बर्तन धोना, पौधों को पानी देना या मेज साफ करना। शर्त सिर्फ ये है कि आप उस काम को पूरी तवज्जो और नियत के साथ करें। ये तो बहुत दिलचस्प है। किताब में मिसाल दी गई है कि बिल गेट्स हर रात खुद बर्तन धोते हैं, क्योंकि ये काम उन्हें सोचने और पुरसुकून होने में मदद देता है। जब आप एक मामूली काम को भी पूरी तरह से इसमें डूबकर करते हैं, तो वो एक मुराकबा बन जाता है। यानी किसी भी काम को बामानी बनाना हमारे अपने हाथ में है। ये बहुत गहरी बात है। तो हमने खुराक, कम्युनिटी, हरकत और फ्लो पर बात की, लेकिन जब मुसन्निफिन खुद उरुगुमी गांव गए, लंबी उम्र का गांव। हाँ, लंबी उम्र का गांव, और वहां के बुजुर्गों से बराहे रास्त बात की, तो उन्होंने उनसे क्या सीखा? उन्होंने सीखा कि सबसे गहरी हिकमत अक्सर सबसे सादा होती है। जब उन्होंने 100 से ज्यादा बुजुर्गों से इंटरव्यू किए, तो कुछ बातें बार बार सामने आईं। जैसे कि? एक 102 साला खातून ने कहा, लंबी जिंदगी का राज ये है कि कभी फिक्र न करो और अपने दिल को हमेशा जवान रखो। लोगों के लिए अपना दिल खोलो और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखो। वाह! तकरीबन सबने यही कहा, फिक्र मत करो, अच्छी आदतें अपनाओ और अपनी दोस्तियों को हर रोज परवान चढ़ाओ। इनमें से कई लोगों के लिए उनका सबसे बड़ा अकीगाई रोजाना अपने दोस्तों से मिलकर गपशप करना था। ये कितना सादा और खूबसूरत है। हम लंबी उम्र के लिए महंगे सप्लीमेंट्स और पेचीदा वर्जिशों के पीछे भागते हैं, और वो कह रहे हैं कि बस दोस्तों के साथ हंसो और मुस्कुराते रहो। बिल्कुल, ये कम्युनिटी का किरदार वाकई मरकजी है। ओगेमी में हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता है। वो हर छोटी बड़ी खुशी, जैसे किसी की सालगिरह, मिलकर मनाते हैं। और म्यूजिक, गाना, रक्स? जी, वो उनकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। एक और अहम नुक्ता ये है कि उन सब का कोई ना कोई अकीगाई जरूर है, चाहे वो बागबानी हो या कपड़े बुनना, लेकिन वो उसे लेकर बहुत ज्यादा संजीदा या परेशान नहीं होते। अच्छा, तो वो पुरसुकून रहते हैं। उनके रवैये में एक ठहराव है, एक सुकून है। वो जल्दी में नहीं रहते। उनका अकीगाई उनकी जिंदगी में ऐसे रचा बसा है जैसे सांस लेना। तो आज की इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि इकिगाई का फलसफा सिर्फ एक मकसद तलाश करने का नाम नहीं है। ये एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है। सही। ये मुतवाजन खुराक, रोजाना हरकत, एक मजबूत समाजी हल्का और हर काम को तवज्जो से करने का नाम है। और इन सब के ऊपर एक मुस्बत और पुरसुकून रवैया, जो आपको जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना करने में मदद दे। तो इस सब का क्या मतलब है? शायद इकिगाई कोई पहाड़ सर करने जैसा बड़ा मकसद तलाश करने के बारे में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे लम्हों में खुशी और मकसद तलाश करने का नाम है। आपने बिल्कुल सही नतीजा अखज़ किया। किताब के आखिर में इकिगाई के 10 उसूल भी दिए गए हैं, जैसे फाल रहें, रिटायर ना हो, आहिस्ता चलें, फितरत से जुड़ें। जी। लेकिन मैं एक आखिरी सोच के साथ बात खत्म करना चाहूंगी। क्या ये मुमकिन है कि असल राज सिर्फ ये ना हो कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये हो कि आप इसे कैसे करते हैं? ये गहरी बात है। किताब में टोक्यो की एक बड़ी इमारत में काम करने वाली लिफ्ट ऑपरेटर का जिक्र है। उसका काम दिन में हजारों बार बटन दबाना था, लेकिन वो हर मेहमान का इस्तकबाल इतनी खुशजोशी और मुस्कुराहट से करती थी कि उसने अपने मामूली काम को एक फन बना दिया था। उसने अपने काम में माना तलाश कर लिए थे। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा आम बोरिंग काम है जिसे हम सिर्फ अपनी तवज्जो और नियत बदलकर एक बामानी और खुशगवार तजुर्बे में तब्दील कर सकते हैं?